Hello everyone, I am Anirudh Arora, President of Moot Court Committee. We have our co-host Sakshi Dhillon, Vice President of Moot Court Committee. Today we have our inaugural guest of the podcast, Dr. Neenu Verma, Head of the Department of Laws, Guru Nanak Dev University. The Moot Court Committee is extremely grateful to have you, ma'am, Thank and you we so are very much. thankful that you have spared some time for this podcast. Ma'am, how are you feeling to be here? This is a good initiative which has been taken up by the students of Moot Court Society and अभी तक मुझे लग रहा था कि लॉ वाले स्टूडेंट्स सिर्फ मूड कोर्ट्स तक और किताबों तक लिमिटेड हैं बट इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू पीपल हैव इनिशिएटेड एंड आई थिंक वी आर गोइंग बियॉन्ड द बुक्स. Thank you, ma'am. Ma'am, can we begin with the podcast with your due Yes, permission? surely. Ma'am, describe yourself as a student in your law school. Me as a student, I was a very serious kind of student. Although I always participated in extracurricular, co-curricular activities and remained a good student as well. But basically, I was not only towards my book, and I was trying to work all round. I tried to maintain all round development of myself. It was basically my interest area that सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी, जिंदगी भी पढ़नी है. So that is what I have started with this legal education. Ma'am, what inspired you to choose law? Basically, there was no inspiration. It was purely accidental. It was a profession not by choice, but accidentally I been into law. Actually, my father wanted me to do law, so he persuaded me to go for it. I had certain other goals, certain other targets to go with, but it was a sudden surprise in my life, and I took this entrance exam and I cleared it well, and just I got seat well, and I just got admitted in law. बट जब लॉ पढ़ना शुरू करा देन आई रियलाइज इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और मुझे इसको आगे परस्यू करना है. एंड टुडे आई एम अ लॉ टीचर एंड इनिशियली वही जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो दिस वाज एन एक्सीडेंटल चॉइस बट आई एम वेरी हैप्पी विद माय प्रोफेशन राइट नाउ. I mean, in your initial days, what you wanted to do besides law? Besides law, basically I always had a business acumen. So I tried to do MBA. मैं चाहती थी कि कोई मैं बिजनेस करूँ, कोई कंपनी खोलूँ, कुछ करूँ. आज की डेट में भी शार्क टैंक मुझे बड़ा अच्छा लगता है. कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे जॉब छोड़ के आई शुड डू सर्टन बिजनेस बिकॉज वो मेरा पैशन है, वो मेरी हॉबी है. तो अदरवाइज है ना, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी जैसे अभी मैं पढ़ाती हूँ तो बिजनेस लॉज एंड टैक्सेशन, तो कहीं ना कहीं मैं अपने शौक को वहाँ पे पूरा कर लेती हूँ. तो दिस वाज माय इनिशियल चॉइस. Right, यस. ma'am. Yes. Ma'am, once you were the student of Guru Nanak Dev University, and now you hold a prestigious position. So, how you describe your experience, like from student to head of the department? इट्स अ बिग जर्नी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन कभी आएगा. इनिशियली मेरा टारगेट सिर्फ इतना था कि मुझे लॉ करना है, तो उसके बाद आई विल सी समथिंग, देख लेंगे क्या करना है. पर मुझे सीरियसली कभी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस पोजीशन पर पहुंचूंगी. बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड सारे, आई विल गिव एंटायर क्रेडिट टू द ऑलमाइटी. उन्होंने एक पर्पस के लिए मुझे चूज किया था और आई थिंक आई हैव बीन चोजन फॉर दिस थिंग एंड दैट्स व्हाट आई एम डिस्चार्जिंग माय ड्यूटीज, नथिंग मोर देन दैट. Ma'am, as if you have described your law school, were you more towards attendance or towards extracurricular activities? आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस. सो ऑल्दो हमारे टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी बिकॉज वो टिपिकल वो वाले दिन थे जब कॉलेज जाना है तो पढ़ाई करनी है. बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं होते होते थे क्योंकि कुछ सिस्टम या समझे कि अवेयरनेस नहीं थी, हमें नहीं पता होता था कि वट एल्स वी कैन डू. तो थोड़ा सा क्लोज्ड इन्वायरमेंट था, तो उस क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रह के सिर्फ क्लासेस लगाना और सिर्फ पढ़ना, दैट वाज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि लॉ पढ़नी है तो सिर्फ किताबों से नहीं, दूसरे तरीके भी वी शुड बी एंगेज्ड मोर इनटू इट. तो जो चीज़ें मैंने नहीं करी तो आई ट्राई टू इनकलकेट दोज थिंग्स फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स. तो दैट इज़ वाई यू कुड सी कि हम इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, गेस्ट लेक्चर्स भी हो रहे हैं, ताकि बच्चों को एक एनवायरनमेंट मिले जिससे उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो हो सके. Ma'am, we have also heard that you have practiced some time some Yes. time in the courts. Ma'am, Yes. kindly describe your यस. experience. बेसिकली वंस वी वर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि कोर्ट ट्रेनिंग का कोई बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कल्चर नहीं था, इंटर्नशिप्स का भी इतना कल्चर नहीं होता था. ठीक है, एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हम लोग कोर्ट जाते थे, बट सेटबैक तब लगा जब लॉ करने के बाद भी आपको कोर्ट में जाके ये नहीं पता कि वेयर यू नीड टू स्टैंड, हाउ यू नीड टू स्पीक,
वेयर यू नीड टू स्पीक और वेयर यू नीड टू कीप साइलेंस। तो वो चीज़ें मुझे लगती थी कि हम जब प्रैक्टिस में चले गए तो इनिशियली इट वाज अ स्ट्रगल फॉर अस, फॉर अ फ्रेशर इटसेल्फ वी कुड से। तो वो फ्रेशर्स के लिए जो स्ट्रगल आज की डेट में भी सब जने फोकस करते हैं वही हमारा भी होता था। और धीरे धीरे जब सीखना वहाँ पे भी शुरू करा तो काम करते करते वहाँ पे भी इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। और मुझे लगा कि वहाँ हमने बहुत सारे मिसमैचेस भी देखे कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है और जो असल में प्रैक्टिस में हो रहा है, देयर वाज अ बिग गैप इन दैट। तो जैसे फिल्मों में और टीवी में दिखाया जाता है कि एक कोर्ट रूम लगा हुआ है जहाँ पे सब जने बड़े साइलेंटली सुन रहे हैं, जैसा आप बैठे ऑर्डर ऑर्डर कर रहे हैं। Dramatic एंड यस, experience. इट वाज एन एंटायर पिक्चर इन माय माइंड। पर जब एक्चुअली हम लोग वहाँ पे जाके देखे तो इट वाज जस्ट अ क्राउडेड रशी काइंड ऑफ सिनेरियो। कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है और कहीं पे भी वो सीन था ही नहीं जो हमने इमेजिन किया हुआ था। तो उस सीन से उठ के और असली ज़िंदगी में आने तक का इट वाज़ अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट वी पीपल हैव एनकाउंटर्ड। और वो चीज़ें आज की डेट में जब स्टूडेंट्स इंटर्नशिप पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है वो उन चैलेंजेस से पहले ही पार पा चुके हैं जो हमने एज अ प्रैक्टिशनर शुरू करी थी। मैम आप कौन सी सिटी की कोर्ट में प्रैक्टिस की थी आपने? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जलंधर। यस। When you joined as a law teacher, what was the first thing that you wanted to change in the institution? Initially, there was no goal like this. I was just like any other teacher. आगे the only thing that I wanted to do was to take my lectures और lectures क्योंकि तैयारी करके जाना है because there are so many students watching at you. Just they are taking you as your role model. तो एक responsibility होती है as a teacher कि जो करें क्लास में पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाना है। सिर्फ शुरुआत वहीं से हुई थी। देन आई ट्राई टू इनकलकेट सर्टन गुड प्रैक्टिसेस इन माय सब्जेक्ट क्योंकि मैंने पहले बताया कि आई हैव बीन टीचिंग बिजनेस लॉज एंड टैक्सेशन लॉज। तो मेरा पर्पस ये होता था कि जो चीज़ प्रैक्टिकली सीखनी चाहिए पहले एक टीचर को वो क्लास में डिसेमिनेट भी करनी चाहिए ताकि आप सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। और वही चीज़ें मैंने शुरू करी अपने सब्जेक्ट के लिए। धीरे धीरे वंस आई हैव बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर डिपार्टमेंट तो मुझे लगता है कि उन्हीं चीज़ों को हमें बाकी सब्जेक्ट्स में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, रादर दे शुड बी मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ हम उनको गाइड कर सकें। Ma'am, your aim as a head of Department of Laws, your major goals that you want to achieve in future. मेजर गोल दैट आई वांट टू अचीव इनिशियली मुझे जिस दिन से मेरी जॉइनिंग इस इंस्टीट्यूशन में एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुई है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे आई हैव रियलाइज कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी हैं मार्वलस स्टूडेंट्स दैट वी हैव। थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि एज ए टीचर मैं कुछ कर सकूँ तो आई नीड टू इग्नाइट दीज पीपल। तो सिर्फ मैं इग्नाइट करती हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को कि ये काम हमें करना है एंड आई गिव देम द डायरेक्शन कि ये काम इस तरीके से हो सकता है। बट व्हेन दे एग्जीक्यूट वो लेवल अप हो जाता है। तो सिर्फ टीचर के कहने सोचने से कुछ नहीं होता, एक हेड के कहने सोचने से कुछ नहीं होता unless and until it is being implemented by the students and the entire team of teachers that we have who have been incorporating their efforts in upliftment of all such activities। ये अकेले पॉसिबल नहीं है तो मुझे लगता है कि सबके सहयोग से हम आगे और भी बहुत अच्छा करेंगे। और एक तो आप देख ही रहे हो जशन की ट्रॉफी, ये आप सबके एफर्ट्स की वजह Yes, से ही ma'am. हमारे पास है ही है। Not only this, there are many other activities in which our students are participating in the moot courts or debates or wheresoever जहाँ पे भी वो जा रहे हैं। और मैं बड़े ऑनर के साथ कहती हूँ कि हर जगह जाके वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़े से हम तैयारी पे ध्यान ज़रूर देते हैं बट मेन परफॉर्मर्स तो स्टूडेंट्स हैं और अगर वो कर रहे हैं अच्छा तो इट्स गुड फॉर मी। और मेरा यही टारगेट है आने वाले टाइम में कि हम इन एक्टिविटीज़ को और बढ़ाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे ताकि वो अपना अपनी फैमिली का और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करें। Ma'am, as per you, what is the significance of moot courts? Significance of moot courts, first of all I feel like it's very important activity. All the students at least in their entire you could say time span of the being a student at least सबको participate जरूर करना चाहिए। winning is another thing but participation is more important क्योंकि उससे आप बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं जैसे कि यू गेट टू नो कि आपको पढ़ना कैसे है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, मेमोरियल्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं। मेमोरियल और कोर्ट फाइल को अगर आप कंपेयर करके चलो देयर विल बी मेनी पीपल हु विल से कोर्ट का काम तो डिफरेंट होता है बट आई विल से कि रिसर्च करने की आदत एक जो परफेक्शन लेके आनी है अपने काम में वो यहाँ से आपकी डेवलप होती है। मोर ओवर द स्टूडेंट्स हुएवर आर पार्टिसिपेटिंग दे गेन कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एज वेल।
क्योंकि कितने लोगों के सामने जाके उनको परफॉर्म करना है, कितनी बारी वो जाएंगे, स्टेज फियर खत्म होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनकी आर्टिकुलेशन स्किल्स, उनकी लीगल स्किल्स, सब तरीके से इट्स एन एंटायर डेवलपमेंट ऑफ यू कुड से गुड लॉयर के तरीके, उनकी ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को ये ज़रूर एडवाइस करती हूँ कि डेफिनेटली दे शुड पार्टिसिपेट इन टू इट। हालांकि हम जब स्टूडेंट थे, ऑनेस्टली आई मस्ट एडमिट, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। कारण ये है क्योंकि उस टाइम पे इतना एक्सपोजर ही नहीं था, तो रादर हमें कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती थी, कोई इतने इवेंट्स होते भी नहीं थे जितने आज की डेट में हो रहे हैं। तो वही चीज़ है, वही मेरे पहले वाली चीज़ है जो मुझे लगता था कि मैंने एज अ स्टूडेंट नहीं करी है, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, और वही हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूड कोर्ट सोसाइटी आप सब ने मिलकर बनाई है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सब बच्चों की इस सोसाइटी में होनी चाहिए, एंड दे शुड कम फॉरवर्ड, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो ज़रूर करें। विनिंग इज़ अनदर थिंग, कोई बात नहीं, वो होता रहेगा, पर पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट। मैम, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक थॉट रहता है कि लीगल एजुकेशन में नेशनल लॉ स्कूल्स और जो डिफरेंट लीगल स्कूल्स हैं मैम, उनमें डिफरेंस है। तो वो उनके माइंड में हमेशा एक इम्प्रिंट सा रहता है। तो मैम, आपको व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन इट? आई थिंक इट शुड बी मोर लाइक कि आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो। नेशनल लॉ स्कूल्स, नो डाउट वी डू हैव अ कंसोर्टियम सिस्टम अवेलेबल, क्लैट का बच्चे इतने सारे, क्लैट का एग्जाम इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल देते हैं। तो प्रायोरिटी एट मोस्ट अगर मैं देखूं तो NLSIU बैंगलोर से शुरू होते हुए, दैट इज अ नंबर वन इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा लॉ करने के लिए इंस्पायर हो रहा है, वो ज़रूर सोचता है कि मैं NLU में जाऊं, पर अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर टारगेट। और आज की डेट में तो इंस्टीट्यूशन और सब चीज़ें जो हैं अपने जगह, अपने नाम और रेपुटेशन तो डेफिनेटली रखती हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है, इट इज़ अ स्किल सेट ऑफ द स्टूडेंट दैट दे नीड टू इनकॉर्पोरेट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप जो भी आपका टारगेट है, वेदर इट इज़ अ जुडिशरी और व्हाट्सोएवर, अगर आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपना स्किल सेट डेवलप करते हैं, फिर चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहे हो, आई थिंक इफ़ यू आर कमिटेड यू कैन अचीव योर गोल्स, कोई ऐसी बात नहीं। And what is your advice to the students who are coming to the university only for attendance purpose? ओनली फॉर अटेंडेंस पर्पस, मतलब उसमें क्या मजा है फिर तो। लाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर बच्चे ले रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी अ वेरी रिनॉर्ड और ऑनर्ड पोजीशन है कि आप लोगों को इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल रहा है। और अगर आके भी आपने मतलब ना, तो गंगा किनारे गए और सूखे सूखे वापस आगे वाली कहानी है। तो आके भी समुद्र में आप बैठे और कहीं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पूरे एनवायरनमेंट की वाइब नहीं आप ले रहे हो, तो फिर तो यहाँ आने का पर्पस ही पूरा नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो एटलीस्ट अगर आप सब आ रहे हो, नॉट ओनली द अटेंडेंस, नॉट ओनली द क्लासेस, वो तो करना ही करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शुड लर्न फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, अपने पीयर्स ग्रुप से सीखें। आप इतना कुछ है आसपास देखने समझने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट। मैम, आपकी कितनी अटेंडेंस होती थी अपने लॉ अटेंडेंस स्कूल में? मेरी पूरी थी। एटलीस्ट मेरी अटेंडेंस 90% से कम तो कभी भी नहीं हुई होगी, कभी भी नहीं हुई होगी, नाइदर इन माई ग्रेजुएशन और इन माई लॉ स्कूल, और स्कूल में भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं घर पे रह नहीं सकती, मैं बोर हो जाती हूँ। तो आप यहाँ भी देखिए, मेरी छुट्टियां यहाँ पे भी कम ही होती हैं। तो एटलीस्ट है ना, लाइक अटेंडेंस तो ठीक है ना, जब एक आपको अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिल रहा है नई चीजें सीखने के लिए, तो फिर मैं अपने आप को इस चीज से डिप्राइव क्यों करूँ। तो वो तो आपको एज अ स्टूडेंट शुड बी एंगेज इन दैट। And ma'am, if we have talked about the extracurricular activities at your time, and now if we see there is a gap, there is a हम्म lot of gap between it. Now more of people are engaged towards the extracurricular activities. It's a tough for a student to maintain a gap. The हम्म reason being nowadays practicality is more important. So people are more towards the extracurricular activities rather than being attendance oriented. हम्म। And there is lot of gap between it. So how can we bridge that gap? I think for all the students, you should chalk out what actually you want to do. So every time you should have certain target, because मेरा शुरू से एक focused approach रही है, even as a student and even as a teacher and even as a head of the institution, like it should be a target oriented approach। हम चाहते क्या हैं अपने आप से, अपनी लाइफ से करना क्या है। तो अगर तो मैंने सोचा हुआ है कि मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी है सिर्फ टू गेट अ डिग्री, देन इट इज़ फाइन, देन अटेंड योर क्लासेस, ठीक है, वो भी हो जाएगा। कोई उसमें एक लेवल तक आपको बोलेगा कि कुछ और कर लो, फिर उसके बियॉन्ड कोई आपको पुश नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ प्योरली योर डिस्क्रिशन, योर चॉइस। तो अगर आप पहले तो आप ये देखें कि आप करना क्या चाह रहे हो। सो
In case if you want to be a litigating lawyer, in case you want to be a probationary officer somewhere, you want to be a law officer, you want to be a judicial officer, उस काम को करने के लिए कैसी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो देखना ज़रूरी है। और वो स्किल सेट अटेन करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हेल्प आउट करती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। लाइक यू पीपल आर द मूड कोर्ट सोसाइटी पीपल, तो मैं आपसे भी यही नॉर्मली सजेस्ट मैं ये करती हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने हर समय सिर्फ मूड कोर्ट्स ही करना है। आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि एक सेमेस्टर में मैंने 1 या 2 मूड कोर्ट्स में जाना है, उनके लिए पूरी तवज्जो से तैयारी करें और बाकी एक्टिविटीज़ जितनी भी हो सकती हैं, चाहे वो डिबेट कॉम्पिटिशन है या जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको लगता है कि आप परस्यू करना चाह रहे हो, क्यों नहीं उसमें जाते। मतलब देयर शुड नॉट बी सो मेनी थिंग्स टू गो अहेड विद, बट चोज़न होनी चाहिए एक्टिविटीज़ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जो आपके इंटरेस्ट को, आपके सिर्फ पढ़ाई के इंटरेस्ट को नहीं, इनफैक्ट आपको कोई हॉबी आपकी है, आप उसको डेवलप कर रहे हो, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, पोएम कॉम्पिटिशन्स हैं, तो आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, व्हाटएवर सूट्स योर इंटरेस्ट। सबको देख के रश रश में सब कुछ नहीं चलना चाहिए, समवेयर यू विल बी डूइंग इनजस्टिस विद योरसेल्फ ओनली, तो दैट थिंग आई विल नेवर अप्रिशिएट। Yes, ma'am, one advice to those law students who are struggling in choosing their career in law. Ma'am, Okay. basically, first they are choosing law as a अपने प्रोफेशन के लिए। मैम जब कोर्ट्स में जाते हैं दे सी के देयर इज नो स्कोप, देयर इज अ लॉट स्ट्रगल। मैम दे देन दे कम फॉर एलएलएम मास्टर्स के लिए। मैम मास्टर्स में भी देयर इज अ लॉट स्ट्रगल। तो मैम कहीं ना कहीं उनका वो कुछ दे आर नॉट हैप्पी और उनको लगता है कि वी आर इन अ फेज के कंटिन्यूअसली वी आर स्ट्रगलिंग ओनली। तो मैम उस चीज़ को व्हाट इज योर एडवाइस? स्ट्रगल तो ज़िंदगी में हमेशा चलता रहेगा। आप ये नहीं सोचो कि सिर्फ स्टूडेंट के तौर पे स्ट्रगल है, तो अभी मी एज़ अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट एट माय ओन प्लेस। एज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली वी आर अगेन स्ट्रगलिंग एट आवर प्लेसेस। बट स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए, इट्स अ चैलेंज थ्रू आउट द लाइफ, वी नीड टू फेस इट। और स्ट्रगल में अगर आप सोचो तो लॉ स्टूडेंट्स के पास तो वैसे ही बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली वी पीपल आर हैविंग स्टूडेंट्स विद अस हु आर डूइंग देयर बीए एलएलबी, और उनको 2 डिग्रीज मिल रही हैं, एक बीए की डिग्री भी मिल रही है, देन यू पीपल आर गेटिंग योर बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स डिग्री एज वेल। तो इसमें द बेस्ट पार्ट इज कि आपके पास ड्यूअल स्कोप अवेलेबल है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन अगेन यू कैन गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या अगर आपके पास बी एलएलबी की डिग्री जब आ जाती है देन यू कैन गो हेड विद मेनी अदर करियर ऑप्शंस। तो चाहे वो एक लिटिगेटिंग लॉयर है, चाहे वो आप प्रोफेशनल है जो भी आप बनना चाह रहे हो, देर आर न्यू एरियाज एज वेल, जैसे कि एलपीओज का एक डिमांड ऑलरेडी चल रही है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स आर देयर, देन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, जुडिशियल ऑफिसर्स आर ऑलरेडी देयर विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग थिंग मेजोरिटी ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द पॉइंट जो चीज़ बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए कि उनका इंडिविजुअल टारगेट क्या है। इंडिविजुअल टारगेट फिक्स कैसे होगा? सबसे पहले आपको क्या चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है? आपका बीइंग अ लिटिगेटिंग लॉयर बनना आपको ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है? आपको लगता है कि जब आप कोर्ट में खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वहाँ पे अपने आर्गुमेंट्स परस्यू कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है? या एज अ टीचर, जैसे अब मेरा इट वाज अ चॉइस दैट आई वांटेड टू बी अ टीचर, तो मेरे को वो ज़्यादा सूदिंग लगता था, तो इसलिए मैं टीचिंग में आई। ठीक है, ऑल्दो आई वाज अ लिटिगेटिंग लॉयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, आई नीड अ शिफ्ट, आई एम बेटर सूटिंग एट दिस प्लेस इन टीचिंग इटसेल्फ, तो मैंने शिफ्ट किया। मतलब व्हाट्सएवर वाज सेटिस्फाइंग माई सेल्फ, दैट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है आपके पास अपॉर्चुनिटीज कैसी अवेलेबल है। अगर मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ होता, मैंने एलएलएम नहीं की होती, मुझे फर्दर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होती, तो शायद मैं फिर टीचिंग में भी नहीं होती, फिर मैं प्रैक्टिस में ही होती। तो आपको फैसिलिटीज कैसी अवेलेबल है, आपका सर्कल कैसा है, देन आपको अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की मिल पा रही हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और आई एम वेरी प्रैक्टिकल अबाउट द थिंग्स। मैं कोई भी काम करती हूँ, मैं पूरे एफर्ट के साथ 1 बार 2 बार मैक्सिमम 3 बार करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि 3 बार मैं वो काम क्रैक नहीं कर पाई, दैट मीन्स आई एम नॉट मेड फॉर दैट, देन आई नीड टू शिफ्ट माई फोकस। तो मैंने बड़े सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो कि जुडिशरी की तैयारी कई कई साल करते रहते हैं। तो कई कई साल कर रहे हैं, तो मतलब द पर्पस इज नॉट कि आप कई कई साल की सिर्फ किताबें लेके बैठे हो, और उसमें से या तो आप पूरे मन के साथ तैयारी करें कि आपको एक्चुअली जुडिशरी क्लियर करनी है, और आप पूरी फोर्स के साथ वो 3 साल आपने लगाए हैं, देन इट मेक्स अ पॉइंट कि येस वो इन्वेस्टमेंट है आपकी टाइम में। बट इन केस अगर बाई चांस नहीं भी हुआ, देन व्हाट, क्या ऐसी बड़ी आफत आ गई है? ऑप्शन बी होना चाहिए। तो अगर आप वहाँ पे एक जगह पे कोई नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा, किसी भी एरिया में हो सकता है, तो देयर मस्ट बी ऑप्शन बी एज वेल, तो दूसरी एरिया पे चले जाए। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। एक चीज ट्राई करो, दिल लगा के काम करो, ये नहीं कि 6-6 महीने बाद स्विच चाहिए।
अब मैं 6 महीने प्रैक्टिस, 6 महीने टीचिंग और 6 महीने ये नहीं। यही प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिक के एफर्टफुली काम करें, सब काम हो जाते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी अचीव। हर गोल अचीवेबल होता है। कई बार हमारी स्ट्रेटेजी जो है उसमें चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो इफ़ यू आर वर्किंग स्ट्रेटेजिकली, तो आई थिंक यू कैन गो ahead with anything, whatever you wish like. Ma'am, as a head, you have met many advocates, Hmm. renowned judges, and many more legal Hmm. acumen, ma'am. Ma'am, उनमें क्या common qualities थी which we as a students need to integrate in ourselves? मुझे जो लगता है कि थोड़े दो एंगल से अगर मैं बात करूँ, जुडिशियल ऑफिसर्स और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के ट्रेड्स में फ़र्क होता है। जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ मैं अब तक मिली हूँ, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी पंक्चुअल, और जो चीज़ बिल्कुल ऑन डॉट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल व्हाट्सएवर बी देयर। तो वो एक चीज़ रहती है जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ। और जब हम एडवोकेट्स के साथ बात करते हैं तो वहाँ पे द थिंग्स चेंज अ लॉट। इतना ज़्यादा डायनामिज्म है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वट एवर बी द सिचुएशन, जैसे भी है, द ओनली पॉइंट इज दैट आपको हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल बनना पड़ता है। तो जो लोग उन चीज़ों में अपना फोकस कर लेते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो आई थिंक दे आर वेरी वेल सूटेड इन प्रैक्टिस। तो दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। हालांकि खैर चैलेंजेस तो हर जगह ही रहेंगे। यू विल सी इवन जुडिशियल ऑफिसर के पास भी बहुत बार ऐसा होता है कि अनफोर्सिनेबल जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे किया जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी ट्रेनिंग, एज अ पर्सन आप कितने सॉलिड और स्ट्रांग हो, वो ज़्यादा डिटरमिन करेगा। Ma'am, as of the previous question, you discussed with us the various areas that one can get into. But if I talk about today, as of open environment, the students are struggling with the competition. There is a lot of pressure on the students, and I feel many students are facing this problem with regard to this. So, what is your ठीक है, advice to the students? कंपटीशन कब नहीं था? हमेशा था। और जब से कंपटीशन है, जितने लोग होते हैं उस समय पे उनके बीच में कंपटीशन बहुत रहता है, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली द अपॉर्चुनिटीज आल्सो इंक्रीज और कंपटीशन भी बढ़ता है। तो कंपटीशन तो हमेशा ही रहेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन गो अहेड विद। अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की बात करें, जिस टाइम पे मेरे फादर ने लॉ करी थी, उस टाइम पे मैं पूरे पंजाब की बात करूँ, हार्डली देवर एनी कॉलेजेस, सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लॉ हो पाती थी और मेजोरिटी स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिल पाता था। और बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे जो कि यहाँ से लॉ कर रहे थे। तो उस टाइम पे उनका स्ट्रगल क्या रहा होगा कि उनके पास एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। तो दैट इज़ व्हाई मेनी ऑफ देयर फ्रेंड्स दे हैव थॉट ऑफ कि दूसरे स्टेट्स में जाके लॉ करके आ रहे हैं। देन उसके बाद जब हमारा टाइम आया, तब यूनिवर्सिटी कैंपसेस वर अवेलेबल बट देयर वर नो लॉ स्कूल्स एज अ, कोई यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कोई हमारे लीगल इंस्टीट्यूशंस नहीं हुआ करते थे। तो हमारे लिए था कि येस, यू नीड टू गो अहेड विद द कंपटीशन। आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे, वहाँ पे आपका रैंक अच्छा आएगा, तब आपको सीट अलॉट होगी, अदरवाइज नहीं है। फिर वो चीज़ आज की डेट में ख़त्म हो गई, तो नाउ देयर आर मेनी मोर इंस्टीट्यूशंस एज ए। Yes. अब इंस्टीट्यूशन से इतने ज़्यादा आ गए और इतने सारे लॉ एस्पिरेंट्स आ गए, तो कंपटीशन का वहाँ पे भी अब सब बच्चे चाहते हैं कि उनको या तो आपका एनएलयू में एडमिशन हो जाए, या तो आपका बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हो जाए, या बेस्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो जाए। बट फिर भी अगर आप देखें, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस और सब में एडमिशन पूरा है। तो सब तरफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द ओनली थिंग आई विल से। और अगर कोई फिटेस्ट नहीं भी है ना, तो कोई इतनी प्रेशर लेने वाली बात नहीं होती है। मतलब है ना, आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कुछ भी आप कर रहे हो और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो और सेल्फ डिसिप्लिन है, टेक इट इजी। लाइफ इज नॉट दैट सीरियस, इतना मुश्किल नहीं होता जितना हमें लग रहा होता है। एक बड़ी ना पुरानी बात मुझे हमेशा याद आती है, जो मैं हमेशा अपने लिए एक गाइडिंग लाइन रखती हूँ। प्रॉब्लम हमेशा इतनी सी होती है, इतनी ही होती है। अगर आप दूर रख के देखोगे तो वो इतनी है। जितना आप अपने विजन के पास करते जाओगे, आपको उतनी बड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा प्रॉब्लम को थोड़ा दूर रख के देखें, वो इतनी ही है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फोकस ऑन द सोल्यूशन। टेंशन नहीं लिया करो, कोई भी नहीं लिया करो। Yes, ma'am. टेक इट इजी। And ma'am, your advice to the students and the department. एडवाइस टू द स्टूडेंट्स एंड डिपार्टमेंट, जो भी करें पूरे मन से करें, अच्छे से करें। रिजल्ट आना ना आना वो दूसरी बात होती है, पर एटलीस्ट अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर अच्छी रखें उसको अचीव करने के लिए। And to the moot court committee. टू द मूड कोर्ट कमेटी,
मूड कोर्ट कमेटी से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इट शुड बी अ स्ट्रक्चर्ड वर्क दैट वी शुड हैव. यहाँ पे नो डाउट majority ऑफ द ऑफिस बेरर आर डूइंग गुड इन द मूड कोर्ट्स इटसेल्फ, बट आपका इंडीवर ये होना चाहिए कि आपको एक्सपोजर देना है अपने टीममेट्स को भी. जितने लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चाहूँगी मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं हमारे डिपार्टमेंट के वो ज्वाइन करें मूड कोर्ट सोसाइटी. हम लोग यहाँ पे भी इवेंट्स कराएं, इंटरनल डिपार्टमेंटल इवेंट्स होने चाहिए. उसके अलावा आप बच्चों को ट्रेनिंग पहले यहाँ पे दें, उसके बाद उनको बाहर भी भेजें. द ओनली थिंग इज नॉट दिस कि हमें सिर्फ अवार्ड्स जीतने हैं. द पर्पस इज कि हमें अच्छा करना है. Yes, ma'am. ठीक है ना. तो वेर एवर यू पुट इन टू एफर्ट्स वो हो जाएंगे. आप अपने इवेंट्स कंडक्ट कराएं, अपने पीयर्स को और ज़्यादा प्रमोट करें. सबके साथ ही ग्रोथ है, इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं है. टीम वर्क शुड बी टेकन फॉरवर्ड फॉर सबका एवर. साथ सबका विकास. एग्जैक्टली. आई बिलीव इन दैट. Yes. And ma'am, on behalf of all the members of the Moot Court Committee and the honored teachers who worked with us, I am here to present a token of gratitude towards you. We were very delighted to have you, and the experiences here. that you have shared with us, we are very thankful for that. And Thank you. the advices that you have given to us, we'll be taking into note. And specifically, we did not discuss about the one facet of the department only, but like taking into subject everything that students wanted to ask, and each and everything that you've discussed with us, we'll take it very seriously. Thank And you. also thank you so much for your Thank you, presence ma'am. and for your time. Thank you so much. And I have been delighted to share my experience with you all. और दोबारा से मेरा भी रिफ्रेश हो गया कि मुझे क्या करना है. Thank you so much. Thank Thank you so you. much, Thank you, team. ma'am.